Now today I am going to take questions from exercise 10.2 of chapter 10 of class 10th, subject maths. And the question is, question number 1 is, in this question we are given 4 options. We have to solve the question and choose the correct option. And the question is, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24. This one is a circle. From a point Q, say this one is the point Q. From a point Q, length of tangent to a circle is 24. लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर यहाँ से ड्रा की जाए तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी कुछ इस तरह से. से दिस वन इज द पॉइंट P. मीन्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज PQ and it is given to us 24. And the distance of Q, that is distance of this point from the center of circle. अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है इट इज 25 सेंटीमीटर. देन द रेडियस ऑफ सर्कल, अगर इसको इसके साथ मिला दें तो ये बन जाएगा रेडियस. तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल. किन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा. अब फिर वही 10.1 थ्योरम इसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है. जो रेडियस है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. सिंस वी नो दैट the line joining center to the point of contact is perpendicular to length of tangent. तो सीधा लिख सकते हो एंगल P इज 90. तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगी. ट्रायंगल OPQ इज अ राइट ट्रायंगल. अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा. 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज. देयरफॉर OQ स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो. OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज 25 स्क्वायर. OP is to calculate. PQ square is. So find the value here. It will be 625. 24 square is 576. When we subtract them we get 49. OP square or OP comes out to be 49 under root, that is. So in this we have the first one, that is A is the correct option. Similarly, I have one more question, that is question number 2 of exercise 10.2. This one is TP and TQ are two tangents. TP and TQ are two tangents to a circle of circle. From point T we are given POQ. POQ is given as 110. We have to find this angle. Again same, क्योंकि ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये एंगल 90, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये एंगल 90. तो
OPTQ is a quadrilateral and sum of the angles of quadrilateral is always 360. So with this relation we can find the answer. Since the line joining, again 10.1 theorem, center to point of contact is perpendicular to length of tangent. Therefore, P equal to Q equal to 90. In quadrilateral OPTQ, angle POA plus angle P plus angle PTQ plus angle Q is 360. POA is given to us 110, P is 90, PTQ to calculate and Q is 90. So PTQ comes out to be 360, 90 और 90 हो गया 180 प्लस 110 290, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस एंड इट इज 290, सॉरी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री एंड 70 डिग्री इज आवर चॉइस नंबर 2. So B part is correct option. Similarly, I have question number 3rd of same exercise, that is 10.2, and the question is if tangents PA and PB from a point P. फिगर बना के देखते हैं पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. This one is center. Say this is point P. Sorry, this is A. PA, PB, two tangents from point P. ये एक P कहीं बाहर पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये आता है PA, यहाँ से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो आता है ये वाला, इट इज़ PB. PA, PB, two tangents from point P to circle with center O are inclined at an angle of. inclined का मतलब कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आता है दैट इज 80. देन POA is equal to POA. इसको मिलाओ इसके साथ, ये मिला दिया इसके साथ, ये सेंटर आ गया. तो हमें निकालना है POA, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ये आ गया हमारे पास 90. फिर वही रिलेशन क्या है? सिंस लाइन जॉइनिंग center to the point of contact is perpendicular to length of, therefore angle A is 90. हमने 10.2 थ्योरम की थी. अभी क्या कहा था मैंने कि अगर P एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हैं वो बराबर होती हैं. अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर हैं
देन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? कि सेंटर ऑफ सर्कल यहीं लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम external point are always, that is, अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है देन द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द लाइन ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बिटवीन टू टेंजेंट्स। तब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, विच मीन्स अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1 एंड दिस वन इज से एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ईच जो है किसके बराबर होगा? 1/2 APB इक्वल टू 1/2 APB is 80. So angle 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 40, ये 90 ये 40, तो ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल OAP। एंगल POA प्लस एंगल A प्लस एंगल 1 इज 180। POA हमें कैलकुलेट करना है, A इज 90 एंड 1 इज वी हैव कैलकुलेटेड 40, इट इज 180, तो POA कितना आ गया? -130 and this one is our correct option, that is option A is correct.